chapter from Indian Economy for class 12, and the name of the chapter is Employment. It's a general chapter, and there are many general and specific terms as well. Now when we say employment, we are talking about a process under which an employer gives an opportunity to employee to work under him. In return, what did he do? He is supposed to give the compensation, which we are aware of the term salary or wages. Okay, so the employee sells his labor to the employer and he works and get money. Actually, ये कौन सा employment हुआ? Wage employment. But if I am working for my own self, I am working on my own, so we call it self-employment. So employment का ultimately मतलब क्या हुआ? मैंने अपने आप को employ किया in some work and I get some money out of it. So I am getting money and I am doing some work. Actually फिर अगर employment को define करना हो तो क्या करें? Doing some economic activity, of course. क्यों economic? क्योंकि उसके बदले में हम पैसा ले रहे हैं. तो जिसके बदले में you are earning your livelihood or earning your living is what is known as employment. Okay? तभी तो term use करते हैं unemployment, somebody who is not involved in any work and doesn't get any money. So unemployed हो गया. बात समझ रहे हैं? तो कैसे define करेंगे अब हम employment को? Reach to question number 1 in my handout. It's what do you mean by term employment? Meaning, it's an activity. I'm doing some activity to get some money, which a person earns, from which a person earns what? Means of livelihood. Okay? So वो activity जिसे करके एक बंदे को पैसा मिलता है अपना घर चलाने के लिए, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Employment. Okay. So फिर question आया, worker कौन है? Who is a worker? आप सोचे जरा पहले, आप कितना जानते हैं who is a worker? Let me tell you आप क्या जानते हैं. आपके माइंड में, बहुत सारों के माइंड में आ रहा होगा और मुझे बताइएगा आ रहा है कि नहीं. फिर then we'll see whether you're thinking in the right manner or not. Worker is जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, है ना? आपके माइंड में जैसे मैंने बोला वर्कर, आपका ध्यान, हाँ वर्कर वो जो फैक्ट्री में वो जो स्किल्ड नहीं है मुझसे, जो मैनुअल काम कर रहे हैं या मशीन पे काम कर रहे हैं, मतलब लोअर ग्रेड जॉब, यही होता है. 90% लोगों को अगर ये लगता है तो वो सही नहीं है. वर्कर वर्ड बना है वर्क से. The one who works and gets money. ठीक है? The one actually who works for the sake of earning money is what is known as worker. अब वर्कर कोई भी है जो काम कर रहा है. Even your not-only teacher is also a worker because I am selling my labor and getting money. Doctor is a worker. Okay? Manager is also a worker because he works. ठीक है? So हमें अपने इकोनॉमिक्स में वर्कर टर्म को एक वाइडर टर्म समझना है और समझाना है. वो जो माइंड में, जैसे कुछ वर्ड्स के लिए ना हमारे माइंड में सीधा ही ध्यान, वर्कर मतलब वो फैक्ट्री का, लेबर मतलब वो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं या मजदूर, वो लेबर, है ना? तो एक्चुअली लेबर टर्म क्या है? लेबर क्या है? I sell my labor and get money. Sell my labor मतलब मैं बंदे बेचती हूँ? Of course नहीं. So I sell my work, my efficiency, my expertise. That is what is known as labor. Okay? तो हम लाइफ में बड़ी गलत बात भी बोल देते हैं, गलत चीजें ही माइंड में बैठ जाती हैं बस. जैसे हम बोलते हैं अपना मोबाइल देना, कॉल करनी है, 1 मिनट मोबाइल देना. मोबाइल कैसे देते हैं? मोबाइल तो एक फैसिलिटी है जो इस सेल फोन के साथ अटैच्ड है. What is mobile? I can move anywhere by holding my cell phone. तो नेक्स्ट टाइम किसी से मोबाइल नहीं मांगना, क्या मांगना है? अपना सेल फोन देना. सो करेक्ट कीजिए, बी स्पेसिफिक. हमें लगता है की फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? आप गलत ही बोले जा रहे हैं, ऑफिस सीख भी नहीं रहे, क्यों नहीं पड़ता? पड़ेगा. सो आप इसे चेंज करेंगे. ऐसे ही वर्कर मतलब माइंड से ब्रॉडर टर्म घुसेड़ दीजिए, नहीं तो वही पेपर में लिखोगे, इसलिए चेंज करने के लिए इतनी बात बोल रही हूं. अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल who is involved in some economic activity mainly to earn a living. Some of the examples are farmer is a worker, manager, laborer, doctor, professors, everybody. Because what do? They sell their labor and get
get money in return and they work for that. A worker contributes to the process of GDP, that is gross domestic product, by rendering his productive activities. I am contributing towards nation's growth, national income, because whatever my income is, if I grow, nation grows. If you grow, your parent grows, nation grows. Because nation क्या है? Nation कोई बंदा नहीं है, हम सबकी इनकम मिलाकर नेशन की इनकम बनती है. So a worker is the one who contributes towards GDP of the country. समझ में आ गया? चलिए आगे. Okay. Now the third question, it is a very general question which comes: why do people work? Why do I work? Why do your parents work? बस वही आंसर लिखिएगा. One किसके लिए? To get their livelihood. खाना कैसे खाएंगे? Basic needs को कैसे पूरा करेंगे अगर नहीं कमाएंगे तो? So that is why people work. और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी कमाते हैं. सोशल सोसाइटी में मैं इसलिए वर्क कर रही हूँ. क्यों? बिकॉज सोसाइटी में भी मैं अपना एक अच्छा रोल चाहती हूँ. पीपल शुड सी दैट शी इज अ टीचर एंड शी इज वर्किंग सो हार्ड एंड देखो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मेरा सोसाइटी में उनका देखने का नजरिया लोगों का मेरे लिए बदल जाता है. ऐसे ही आप कल को जब जॉब्स करेंगे, क्यों करेंगे? आपको सोसाइटी में एक रेपुटेशन भी मिलेगा. तो आप जितनी अच्छी जॉब पर जाते हैं उतना अच्छा आपका सोसाइटल रैंक बढ़ जाता है. सो दीज ऑल आर द रीजंस. ओके, चलिए. पीपल वर्क फॉर अर्न देयर लाइवलीहुड. ओके, सम पीपल गेट और हैव मनी बाय इनहेरिटिंग इट, नॉट वर्किंग फॉर इट. कुछ लोगों को वो दादाजी और पापा जी छोड़ देते हैं, वो उनको मिल जाती है. क्या उन्होंने कमाई है? क्या उन्होंने कमाई है? नहीं, वो मिली है, गिफ्ट है, और वो उसके सिर पे बड़ा ड्रामा कर रहे हैं. पापा की गाड़ी में ऐसे ये स्टंट और ये वो स्किड, ये सब. लेकिन जिस दिन खुद अर्न करोगे ना, रिमेंबर माय वर्ड्स, जिस दिन खुद अर्न करोगे उसे थोड़ा डिसेंटली चलाओगे, क्योंकि वो आपकी अपनी हार्ड अर्न्ड मनी. यू मे नॉट रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर पेरेंट्स मनी, बट व्हेन यू विल अर्न ऑन योर ओन, ट्रस्ट मी, आई हैव आल्सो क्रॉस दैट स्टेज. जब अपने पेरेंट्स से लिया हुआ चीज थी, सो इतनी परवाह नहीं होती थी. लेकिन जब खुद कमाया, घर बनाया, सब किया, अब परवाह होती है. नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं. ध्यान से रखो बेटा, डोर आराम से बंद करो, टूट जाएगा. आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत बार ऐसे रोकते होंगे. सो इट मींस आप बड़ा इरिटेट होते हैं, लेकिन नहीं होंगे जिस दिन द मोमेंट यू लर्न ऑन योर ओन. राइट? सो कुछ लोगों को इनहेरिटेड मिलता है. दिस डजंट कंप्लीटली सैटिस्फाई एनीबॉडी. आप पेरेंट्स का मिल गया, उस पर बैठ गए और उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्या आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी? और जिस दिन आप पहली गाड़ी खरीदेंगे या स्कूटर या बाइक, ओ हो, उस दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने शायद प्लेन ही खरीद लिया, क्योंकि वो क्या होगा? अपना खरीदा होगा. जब अपने खरीदी वाली चीजें होती है ना, ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है, ऐसे मेंशन करते हैं. तो जो प्राइड है वो मम्मी डैडी के पैसों से नहीं मिलती. राइट? सो वी विल ऑल लर्न दैट. यू मे यू आल्सो डू दैट. Being employed in work gives a sense of self-worth. मैंने किया है, I have achieved this, and enables us to relate ourselves meaningfully with others. I have seen many people. मेरे अपने ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हमने अपने फादर की फैक्ट्री में नहीं बैठना. No, he may finance in my business, but I will start my own venture and I will take that venture to this level. So I don't want कि वो जो उन्होंने बनाया है वो मैं ले लूँ और फिर मैं. तो ऐसी डिग्निटी वाले लोग भी हैं, और मैंने देखा है मेरे अपने स्टूडेंट्स में ही इतने सालों से that they are doing it. They have their own factory, of course funded by their parents, but they are running that purely on their own worth और अपनी knowledge से, अपने experience से उसको चलाते हैं. So that's also a wonderful thing. So आपको एक जो sense of self worth मिलती है, तो बहुत बड़ी चीज होती है. Every working person is actively contributing to national income, and hence हम सब जब अर्न करेंगे, why do people work? नेशन की भी ग्रोथ हो जाएगी, the development of the country by engaging in various economic activities. That is the meaning, the real meaning of earning of a living. Last point, we do not work for ourselves only. और किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी करते हैं. The one who are dependent on us. Say for example, in my family, my children are dependent on me, my parents are dependent on me, so I work for them also. Because I want to give them a good life, so I'm not only earning for my own self, increasing my own self-worth, I'm also working for my parents and my children. Alright? So हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों के लिए भी कमाते हैं. समझ गए? चलिए अब discuss the number of workers in India.
ओके, इसमें हम डेटा की बात करेंगे, कितने तरह के लोग हैं. So let's do that. Fourth number question. The following is the information relating to this question. During 2011 and 12, India had about 473 million strong workforce. Since majority of our people, workforce क्या होता है? That I will cover. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is high. The rural workers, समझ आई आपको? बहुत सारे लोग हमारे रहते ही रूरल एरिया में, तो इसलिए वर्कफोर्स भी कहाँ है ज़्यादा? रूरल एरिया में. So the rural worker constitutes about 3/4 of the 473 million. So 3/4 लोग तो हमारे वहीं पर हैं. आगे, men from the majority of workforce in India, about 71% of the workers are men, 30 are women. Men and women include child labor in respective sexes as well. क्योंकि हमारे देश में चाइल्ड लेबर भी है, बच्चे भी काम करते हैं. हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी जो है वो अंडर एज हैं. आपके घरों में भी कोई ना कोई होंगे. Women workers account for 1/3 of the rural workforce. जो रूरल एरियाज में विमेन ज्यादा काम करती हैं. ठीक है, क्यों? Why? रूरल एरियाज में, जबकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती, क्योंकि उनकी नीड इज वेरी हाई. उनका घर नहीं चल सकता अगर सिर्फ एक ही बंदा घर से बाहर जाकर काम करे. So the whole family works together, maybe on the land, farm, or maybe they are doing some non-farm activities. But the whole family is involved. Means females are also. Urban areas में females कम काम करती हैं. If I ask all of you, majority of, मतलब मैं I would say 20% होंगे जो मेरे students में जिनकी mothers काम करते होंगे. बाकी सब घर में होंगी housewives. Are they illiterate? They are not. Why are they not going out and work? They don't need, because there are members in the family who are earning good amount of money and they don't feel like going out, or maybe family responsibilities, or maybe many other things. Okay, family restrictions also. So हमारे rich लोगों में they don't prefer to send their females out for the work because they can afford to give them everything. So ये भी system है. वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ सब काम करते हैं. Okay, so 1/3 of the rural workforce, where in urban areas they are just 1/5 of the workforce. Women carry now 1/3. याद हो तो आप बस इतना याद रखें कि रूरल एरियाज में women ज़्यादा काम करती हैं. रीजन याद रखिएगा. Women carry out working like cooking, fetching water, fuel wood, and participate in farm labor. ये भी उनका काम रहता है जी. वहाँ खाना बनाना है विलेज में या इंटीरियर्स में या फॉरेस्ट्री एरियाज में. इट्स नॉट दैट इजी टास्क. तो उन्हें अपनी फ्यूल को खुद इकट्ठा करना होता है. they just go and collect all the dry wood ताकि शाम को खाना बनेगा. फिर फूड भी कलेक्ट किया जाता है, फ्रूट्स लाए जाते हैं या वेजिटेबल्स लाए जाते हैं. सो दे कैरी आउट ऑल दी, although they are not paid for that in cash or in any form of grains. All right, so at times they are not paid at all. For this reason these women are not characterized as workers also. Economists have argued that these women should also be called. जो जैसे अब हमारे घर पे मम्मी है, अब क्या आपकी मदर सारा दिन फ्री बैठी रहती है? I have never seen my mother sitting on a couch and watching TV the whole day. ठीक है? Yes, there are times बीच में entertainment time भी है, उनका अपना personal me time भी है. That's perfectly fine. But the whole day she's sitting idle and not doing nothing. This is not possible. Even आपके घर में भी ऐसा नहीं होता होगा. आपकी mothers, आपकी grandmothers. So you will always find them on their toes all the time, doing something or the other chore. So what happens is इस household chores का आप उन्हें salary देते हैं? नहीं देते. क्या काम नहीं हो रहा देश में? हो रहा है. मेरी मम्मा काम करती है इसीलिए I am able to move out and earn money. If perhaps I have no help at home, मेरे से भी नहीं जाया जाता और मेरी भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती. So it means उनका काम तो कहीं काम के लिए होता. जैसे याद होगा आपको नेशनल इनकम में हमने लिमिटेशंस में पढ़ा था, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ हाउसवाइफ्स. बट economists are arguing that this should be involved because they are also workers. The whole day they are working. Okay, so now moving to the next topic, that is in this I will cover. मैं आपको 5th से लेकर 8th तक के क्वेश्चन समझाती हूँ. पहले आप एक बात समझ लीजिए. एक टर्म आप बार-बार सुनेंगे, लेबर फोर्स. एक आप टर्म सुनेंगे, वर्क फोर्स. What is the difference between these two? Labor force first. Reach to question number 5 in your notes. All persons who are working and having a job, though not working,
और एंड आर सीकिंग, क्या मतलब, वो देखिए इधर, ठीक है, वो सभी लोग, लेबर फोर्स, वो सभी लोग जो या तो वर्क कर रहे हैं, मैं वर्क लिख देती हूँ, दे आर वर्किंग और दे आर अवेलेबल टू वर्क। इसको मैं ये भी कह सकती हूँ सीकिंग जॉब, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जॉब। ओके, ये सब इसमें आएंगे। बट कौन सी एज? एज इज बिटवीन 15 टू 59 इयर्स। 15 से छोटा चाइल्ड लेबर हो गया, 59 से ऊपर रिटायरमेंट एज हो गई, ओल्ड एज की। हमारे देश में 15 से लेकर 59 इयर्स के जितने भी लोग हैं वो सब लेबर फोर्स हैं, वो सब लेबर फोर्स हैं। क्या आप इसमें आते हो? आते हैं? थिंक यस, +2 वाले तो सभी आते हैं, they all are above that, you may be close to 17 or 18, right? So you are part of labor force, लेकिन कहाँ? Are you working? No, you're not seeking for job but available to work. फॉरेन में तो you know that, फॉरेन में क्या होता है, 15 साल के ऊपर जैसे आप टच करते हैं, you are supposed to move out and work because you become the part of labor force. और वहां तो गुजारा भी नहीं हो सकता। यहाँ तो पापा मेरे को प्लीज एप्पल का फोन ले दो, पापा ने ले दिया, वहां नहीं होता, कहते गो एंड अर्न एंड हैव इट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे को एक बुलेट ले दो, कहते गो एंड बाय, यू वर्क हार्ड एंड यू गेट इट। सो दैट मींस यू कैन वर्क, बट ठीक है हमारे यहाँ हम नहीं करते। ओके, हमारे तो बच्चों को वो वहाँ पे काम भी करते हैं, अपना स्कूल भी करते हैं, सब करते हैं खुद, लेकिन हमारे बच्चों को तो ये भी बताना पड़ता है, बेटे उठ जाओ, टीचर आ गई बेटा, ऑनलाइन सुन लो, टेस्ट ऑनेस्टली देना, डिफरेंस तो है ना? यू वेदर यू रिकॉग्नाइज इट और नॉट। उनका थॉट प्रोसेस सोचो, एक बच्चा जो सुबह उठ के न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करने गया फटाफट से, ठीक है, न्यूज़पेपर अब 12 बजे तो जाएगा नहीं, अर्ली मॉर्निंग 6-7 o'clock, and it happens in foreign countries, you must be having many friends or relatives abroad, so they must be telling you. So वो गया, वहाँ से बांट के वापस आया, थोड़ी देर लेटा, फिर अपना पढ़ाई करने चला गया, फिर इवनिंग जॉब्स की जाती हैं, मे बी एट आइसक्रीम पार्लर और मैगनीज एंड ऑल, ठीक है। उसका थॉट प्रोसेस सोचो, थॉट प्रोसेस उसका कैसा होगा, ये नेटफ्लिक्स नहीं होगा उसका थॉट प्रोसेस। अपना थॉट प्रोसेस सोचो, इसको सुबह उठा नहीं, उठाया ना पड़ा, फीड करना पड़ा, बताना भी पड़ा नहा लो, हंस रहे होंगे अभी बैठ के हमारे बातों से। सो जस्ट लुक एट, फिर हम कहते हैं अंग्रेज हमसे आगे हैं, ये भी हमें कंप्लेंट है, यार वो ना हमसे 20 साल 25 साल, अच्छा पहले 50 साल आगे थे, 30 साल आगे, क्योंकि अब हमारे यहाँ के बच्चे भी काम करने लगे, ठीक। सो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना दिए, इंटर्नशिप्स लगा दी, करो आप। सो व्हाट डज दिस मीन? थॉट प्रोसेस चेंज, ओके। सो ये जो छोटी-छोटी आदतें हैं इन्हें बदलें, आपके ऊपर, हमें हमारे बच्चों को पुलिसिंग की आदत है, मतलब जब तक उन्हें देखा ना जाए, वॉच ना किया जाए, टेस्ट लिखते हुए चीटिंग मत करना, वो जो अंदर से सेल्फ होता है, हम सेल्फ वर्थ की बात, सेल्फ कंट्रोल वेरी वेरी पुअर इन इंडिया, थिंक अबाउट इट, है ना। आइए वापस, आप आते हैं आप लेबर फोर्स में, अपने आप को बच्चा बोलना बंद करें, लेबर फोर्स का पार्ट है, यू मे नॉट बी सीकिंग फॉर द जॉब बट यू आर अवेलेबल फॉर वर्क। सो लेबर फोर्स याद रखना है, क्या क्या, 15 से 59 इयर्स तक की एज के लोग जो काम कर रहे हैं। I am also part of labor force, working. You are also part of labor force, not working. I am the asset of the nation. You are the liability. Oh, it's okay. Okay? Become the asset. All right. So working plus non-working people. All right. चलिए आगे. Workforce कौन सी है? नाम से पता चल रहा है. People who are actually working. So you are not part of workforce in the country. I am part of workforce in the country. So, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इसमें वो सब लोग आ गए जो काम कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे। इसमें वर्क है ना, सिर्फ वही लोग आए जो काम कर रहे हैं। ओके, अब इससे एक फॉर्मूला बन सकता है, देखो आपको पूछेंगे लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, व्हाट डू यू गेट? व्हाट डू यू गेट? अनएम्प्लॉयड। बेटे बात समझ में आई? So how do you find unemployed people through labor force and workforce? Labor force minus workforce is equal to unemployed. चलिए ये MCQs में टेस्ट होंगे जी। Okay, all persons, labor force बता रही हूँ जी आपको, all persons who are working and though not working have a job
and though not working are seeking, वो क्या गए, are available for work are deemed to be in labor force. मैंने आपको आसानी तरीके से जैसे यहाँ लिखा है नीचे फॉर्मूला बना दिया, labor force is equal to persons working plus persons seeking or available for work. In other words, labor force is the total of employed and unemployed people. We calculate labor force by subtracting the following people. अब इस 15 से 59 में किन किन को हम नहीं लेते, सुनिए ध्यान से, ठीक है। नंबर 1, अनफिट पीपल और हैंडीकैप। इसमें हम ऑल दोज हु आर एबल बॉडीड, याद रखना है, हमने नेशनल इनकम के टाइम पर भी अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पढ़ा था। सो ऑल दोज हु आर नॉट एबल बॉडीड, सो नंबर 1 बुलेट रेफर करें, जिन जो हैंडीकैप है उन्हें हम इसमें नहीं गिनते, एक्सक्लूड करते हैं। नंबर 2, who are not willing, you remember all those people who are able and willing to work, so इसका मतलब unwilling को भी यहाँ नहीं लेते। unwilling people are not available to work, जैसे not available to work, it means अब हमने आपको यहाँ पर थोड़ा निकाल दिया, या जो अवेलेबल काम करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप अभी काम नहीं कर रहे, वैसे एक्चुअली आपके केस में अनविलिंग है, आप करना नहीं चाहते बिकॉज़ यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। एक बात और बताऊं, है तो थोड़ा सा सरकाज़म बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट गिव लेक्चर्स टू स्टूडेंट्स आउट, आई डोंट शाउट एट देम, आई डोंट मेक देम, आई डोंट गेट एंग्री एंड स्कोल्ड एनी चाइल्ड, बट यस यू शुड रिमेंबर वन थिंग, ये क्यों माइनस कर दिए लेबर फोर्स में से, पहले तो आपको ये पूछना चाहिए एक्सक्लूड क्यों कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट एक्चुअली रिस्पांसिबल है लोगों को जॉब देने के लिए, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। जब भी आता है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई देश में, अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट इज आंसरेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो गवर्नमेंट कहती है हम, ठीक है, हम रिस्पांसिबल हैं इन सभी लोगों के लिए जो काम पर अवेलेबल हैं और ढूंढ रहे हैं इनको देने के लिए, लेकिन रिमेंबर हम ये जो अनफिट लोग हैं इन्हें नहीं, they are not healthy, they are bedridden, how will government give the job? So one, you have to be healthy, very important, otherwise आपको लेबर फोर्स में भी गिना नहीं जाता, यानी गवर्नमेंट कहती है हम आपके लिए रिस्पांसिबल नहीं है। कोई हैंडीकैप है उसकी हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उसकी प्रॉब्लम हो गई ना, वो तो उसके कंट्रोल की बात नहीं है, लेकिन जिसके कंट्रोल में है हेल्थ और वो हेल्दी नहीं है तो वो गवर्नमेंट कहती है वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर यू। दूसरा, गवर्नमेंट कहती है आप काम करना ही नहीं चाहते, फिर जो बंदा काम करना ही नहीं चाहता उसको कैसे करा देंगे जी हम, आप बताएं जरा। एक बात और बताऊं, +2 की फिलॉसफी, few teachers may not say in the market but let me tell you very clearly what happens। जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, अगस्त निकल रहा है, अब आपके एक्चुअली हाथ में पेपर फरवरी में आ जाते हैं, इसका 18 के आसपास आएंगे, कोरोना हो कुछ फरवरी तक तो खुलना ही है बेटा, सो नवंबर दिसंबर में खुल जाएगा, सो इट मींस नवंबर फरवरी में एग्जाम्स आ जाते हैं। तो आपके पास देखिए एक मंथ आप अपना फेस्टिवल्स का माइनस कर दो, जिसमें दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, ये वो सब आएगा, ठीक। तो मंथ कितने हैं, अगस्त निकल गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एक मंथ फेस्टिवल्स और सब माइनस, एक्चुअली यू गॉट 4 months मल्टीप्लाइड बाय 30, कितना होता है 120 दिन, 120 days you have to go for your exams। Now remember one thing, अभी तक तो मैं सबको बोल रही हूँ बेटा एनालिसिस लगाओ, अपने टेस्ट किए हैं, उनको देखो कौन से चैप्टर्स वीक हैं, टॉक टू मी, हम तो आपको थोड़ा मदद करें, आगे बढ़ाएं, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन मैं कर रही हूँ, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे करेंगे, आप लोन लें, हम ये करेंगे, लेकिन आप घर से उठते ही नहीं लोन लेने के लिए। अब गवर्नमेंट तुम्हारे घर आएगी लोन देने, बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, नहीं आएगी। यू हैव टू गेट अप एंड गो एंड गेट द लोन so that you can start your own venture. Similarly, you have to get up and you have to seek for help. If you are unwilling, जैसे गवर्नमेंट ने डिसोन कर दिया, जितने टीचर्स हैं they will also disown you very soon, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो किनके ऊपर डिपेंड करता है, the one who are willing to do something, no matter whether they are as intelligent as you are। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, मेरे पास हार्ड वर्किंग बच्चा होना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा rather than an intelligent one who's not working hard। I would be happy if a child is hard working, no matter उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, मैं उसमें से काम कराऊंगी क्योंकि वो कुछ करना चाहता है।
आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल, आईक्यू वेरी हाई, और बैठे सोफे पे ऐसे हिला के और उठने की हिम्मत नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, देखो मैंने मारी नकल और मैंने सारा पेपर दे दिया, मुझे नहीं चाहिए। और ये तो मैं बोल रही हूँ आपको, आप मार्केट में भी रुक जाना, आप पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा आप दिसंबर तक यू विल बी डिसोन्ड, नवंबर तक ही, क्योंकि पता चल जाता है टीचर को कि ये रिजल्ट बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, जो मेरा रिजल्ट बनाएगा, मेरा बिजनेस है राजे, मेरा जब मैं कहती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ, मैं तो फिर तुम्हें एंड तक ले जाऊंगी खींच के, बाकी टीचर्स तुम्हें डिसोन कर देंगे, जैसे गवर्नमेंट करती है। अरे गवर्नमेंट कहती है वी आर नॉट answerable for these people who are not willing to work. Why should I take them as burden on my work? I would rather arrange jobs for these people who are actually seeking to work. So I would be available for those even in the middle of the night who are actually wanted to do something, not for them who are just showing and making कहानियाँ at home, मम्मी मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, but ना ऑनलाइन क्लास होती है, मेरे से ये नहीं होता, please stop it. You can make fool of your mothers, do not make us. Okay? So you've got how many days? 120. Either waste it or use it. Choice is purely yours. Okay? अच्छा concept है। अगर किसी को समझ में आ गया हो तो I think उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चलिए आगे। Then comes the second point, labor force participation rate. Okay बेटा? Labor force. How do we calculate? यानी फॉर्मूला मांग रहा है बेटा। देखिए कैसे बनेगा? Ratio of labor force is E. Labor force, I write it here. Labor force participation ratio कैसे होगी? टोटल लेबर फोर्स जितनी है, टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, रेट निकल आएगी। भाई टोटल लोगों में से कितने लोग लेबर फोर्स में हैं, तो पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाएगा। सो आपका यहाँ लिखा है, आप इसे फॉर्मूला के फॉर्म में अपने नोट्स में नोट जरूर कर लें। सो इट इज लेबर फोर्स टू पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, इसमें नहीं लिखा, आप कर लीजिए। Define the term workforce. I have already defined. The number of persons who are actually employed at a particular point of time is known as workforce. It includes all those people who are actually engaged in productive activities. Calculation of unemployment. Labor force minus workforce. All right. Worker participation कैसे निकालोगे? जैसे ये निकालिए, बताओ जरा, दिमाग चलाओ, जल्दी बोलिए। Worker, I'm sure you are able to see here. Worker participation, I'm writing in short, ratio. कैसे लिखाओगे बेटा? Total workers यानी workforce upon population into 100. यहाँ आपके पास लिखा है, हाँ लिखा है जी, ठीक है जी। Workforce upon population into 100, इजी हो गया ना? सो आप इनके फॉर्मूलाज अपने पास नोट करके रखिएगा। So worker population ratio is calculated by dividing the total number of workers in the country out of the population, and it has to be multiplied by 100. Alright? So एक छोटा सा टेबल है नीचे. This we will cover in the coming video. Alright? Bye bye. Take care.